السلام علیکم، ہسٹری اینڈ ویل میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جس نے 438 دن سمندر میں گزارے۔ یہ آدمی اگلے 30 گھنٹے گزارنے کے لیے سمندر میں گیا۔ سمندر میں ایک طوفان اس کی کشتی سے ٹکرا گیا اور اس کی کشتی بحر الکاہل میں چلی گئی۔ اسے کشتی پر اپنے اکلوتے ساتھی کا نقصان اٹھانا پڑا۔ 14 ماہ زندہ رہنے کے بعد اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنی کشتی کے ساتھی کو کھا لیا ہے۔ اس نے سمندر میں 438 دن گزارے۔ وہ زیادہ تر شارک کے بچے، وہیل اور کچھوؤں کا کچا گوشت کھاتا تھا۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی اور پینے کو پانی نہیں ہوتا تھا، وہ کچھوے کا خون اور اپنا پیشاب پینے پر انحصار کرتا تھا۔ سمندر میں 438 دن گزارنے کی کہانی بہت دلچسپ ہے اور میں آج اس کہانی کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس آدمی کا نام ہوزے سیلوڈور تھا۔ کشتی پر اس کے ساتھ جو شخص تھا وہ تھا۔ ان کی کشتی 17 نومبر 2012 کو کوسٹا ازول میکسیکو کی بندرگاہ سے روانہ ہوئی تھی۔ ان کا یہ ماہی گیری کا سفر 30 گھنٹے کا تھا اور انہیں اگلے دن مچھلی پکڑ کر واپس آنا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگلے چند دنوں میں طوفان آنے والا ہے، لیکن اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ ایک دن کا ماہی گیری کا سفر انہیں آنے والے ہفتے تک جاری رکھ سکتا ہے، انہوں نے سوچا کہ وہ مچھلیوں کو پکڑ سکتے ہیں اور طوفان سے پہلے بحفاظت واپس لوٹ سکتے ہیں اور طوفان کے دن اپنے گھروں پر محفوظ طریقے سے گزارے۔ انہوں نے بالکل وہی کیا جو انہوں نے سوچا تھا۔ ان کی کشتی 17 نومبر 2012 کی شام کو بندرگاہ سے روانہ ہوئی۔ انہوں نے ساحل سے 150 سے 200 میل دور جا کر گہرے سمندر کی مچھلیاں پکڑ کر واپس آنے کا منصوبہ بنایا۔ 18 نومبر کی صبح 0100 پر طوفان ان سے ٹکرا گیا۔ یہ پہلا اور واحد موقع تھا جب انہیں احساس ہوا تھا کہ طوفان توقع سے پہلے ان سے ٹکرا گیا تھا۔ ان کی کشتی بہت بڑی نہیں تھی اور طوفانی لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی کشتی تقریباً 7 میٹر 28 فٹ لمبی تھی، جو ایک چھوٹے آؤٹ بورڈ انجن سے لیس تھی۔ کیونکہ کشتی اس طرح کے طوفان کو برداشت کرنے سمندر میں ایک دن سے زیادہ گزارنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ سورج یا بارش یا چھڑکتے پانی سے ان کو پناہ دینے کے لیے کوئی کشتی کی چھت نہیں تھی۔ اب جب کشتی نے لڑکنا شروع کیا تو ان کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ کشتی سے زیادہ وزن کم کیا جائے۔ سچ کہوں، وہ اس وقت تک اچھی خاصی مچھلیاں پکڑ چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ تقریباً 500 پاؤنڈ مچھلیاں تھیں۔ یہ مچھلی جہاز کے ریفریجریٹر میں رکھی گئی تھی۔ ان کے پاس کشتی پر کم سے کم چیزیں تھیں۔ ان کے پاس کشتی پر صرف ایک ریفریجریٹر تھا۔ ان کی کشتی میں کوئی چھتری نہیں تھی جس میں نہ روشنی تھی اور نہ پینے کا پانی۔ جب طوفان آیا انہوں نے کشتی کو زیادہ سے زیادہ ہلکا کرنے کی کوشش میں مچھلی پکڑنے کے سامان اور ریفریجریٹر سمیت ہر چیز کو جہاز پر پھینک دیا۔ طوفانی صورتحال کے دوران اسے ہلکا کرنے کے لیے سامان کو جہاز پر پھینکنا معمول ہے۔ یہ کشتی کے ڈوبنے سے بھی بچنے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ آن بورڈ گیئر کے ساتھ سیلاب کا پانی کشتی کے وزن میں اضافہ کرتا ہے۔ انہوں نے طوفان سے لڑتے ہوئے واپسی کا سفر شروع کیا۔ طوفان نے ان کے سفر میں کافی مزاحمت کی۔ کسی طرح وہ صبح 7-8 بجے تک میکسیکو کے ساحل کے کافی قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے میکسیکو کے پہاڑوں کو بھی دیکھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ساحل سے تقریباً 24 سمندری میل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بس پھر ان کی کشتی کا ایندھن ختم ہو گیا اور کشتی کا پروپلشن ختم ہو گیا۔ ان کے پاس مدد کے لیے کال کرنے کے لیے ایک ریڈیو تھا۔ انہوں نے SOS کال بھیجی۔ ان کے باس نے کال کو تسلیم کیا اور ان سے کہا کہ جب تک ریسکیو سروسز نہیں پہنچ جاتی وہیں رہے، لیکن اس کے فوراً بعد ان کی ریڈیو کی بیٹری ختم ہو گئی ہے یا طوفان سے سمندر کے پانی میں داخل ہونے کے بعد ریڈیو خراب ہو سکتا ہے۔ بیرونی دنیا سے رابطہ کرنے کا ان کا واحد راستہ پروپلشن نقصان کی وجہ سے کھو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی ہوا اور لہروں کے تصرف میں تھے۔ بحر الکاہل کی لہروں نے انہیں واپس کھلے سمندر میں کھینچنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں، یہ بحر الکاہل ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ اگر آپ بحر الکاہل کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے نقشے کو دیکھیں، مرکز میں آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ زمین کا دائرہ ہے۔ یہ سمندر دنیا کے ایک تہائی حصے پر محیط ہے اور سمندر میں سب سے گہری جگہ ماریانا ٹرینچ بھی بحر الکاہل میں واقع ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ اتنے بڑے سمندر میں اتنی چھوٹی کشتی تلاش کرنے کی کوشش
बिल्कुल ऐसा ही है। घास के गड़े में सुई तलाश करना या सहराए सहारा में धूल का धब्बा तलाश करना, लिहाजा उनकी कुश्ती मैक्सिको के साहिल से दूर जा रही है। मैक्सिको के पहाड़ उफुक के पीछे डूबने लगे। रेडियो की मियाद खत्म हो चुकी थी। बहाव को कम करने के लिए उनके पास समुद्री लंगर भी नहीं था। इनकी उम्मीदें पहाड़ों के साथ डुबो रही थी। अपनी कंपनी के मुताबिक उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू किया और यकीनन कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों का कहीं पता नहीं चला। दिन गुजरते रहे और उनकी कुश्ती बहर अल-काहिल के वस्त की तरफ रवां दवां थी। अगर आप बहर अल-काहिल को करीब से देखें, कुश्ती का मकाम किसी भी शिपिंग लेन के करीब नहीं था। इसका मतलब है कि बड़े जहाज इस जगह से समंदर को उबूर नहीं करते। मिस्टर अल्वारंगा के मुताबिक उसने एक बार एक बड़ा जहाज देखा था और उसने मदद के लिए हाथ हिलाए, लेकिन बज़ाहिर जहाज ने इसे नहीं देखा और इस वजह से इसे बचाया नहीं गया था। समंदर में अपने बकिया सफर के लिए इसने समंदर में कोई दूसरा जहाज नहीं देखा। जैसा कि पहले बयान किया गया है, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। उनके पास बारिश का पानी जखीरा करने का कोई जरिया भी नहीं था। उन्होंने समंदर से पीईटी की चंद बोतलें उठा ले और उन्हें पानी जखीरा करने के लिए इस्तेमाल किया। जब भी बारिश होती थी, ये पानी जखीरा किया जाता था। बारिश न होने की सूरत में वो समुद्री कछुओं का खून जमा करते थे, जिसे वो अपने नंगे हाथों से पकड़ते थे। जब समुद्री कछुए का खून भी बाकी न रहा तो उन्होंने पीने के लिए अपना पेशाब उन बोतलों में महफूज कर लिया। खाने के लिए उनका वाहिद इंतखाब कच्ची मछली थी। बशमूल बेबी शार्क और दीगर तमाम अक़साम जो दस्तयाब हैं, उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो उन्हें रॉ की शक्ल में खाएं, ना पकी ना उबाल। ये समंदर में उनका चौथा महीना था जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। वो बारिश होने पर पानी पीते थे और जब भी मुमकिन होता मछली पकड़ते थे। चौथे महीने में इसके वाहिद साथी ने खाने से इनकार कर दिया। कच्ची मछली खाने और कछुए का खून पीने के बाद वो बीमार रहता था। एक मौके पर उसने मजीद खाने या पीने से इनकार कर दिया। मिस्टर अल्वारंगा के मुताबिक कुरोडुबा भूख की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा था। जब कुरोडुबा की लाश सड़ने लगी थी तो कुरोडुबा ने कुछ भी पीना या खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। अल्वारंज के पास कुरोडुबा को समंदर में फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने यही किया। ताहम कुरोडुबा के रिश्तेदारों के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ था। उनके मुताबिक अल्वारंगा ने कुरोडुबा पर नाफरमानी की थी। कुरोडुबा के रिश्तेदारों ने मिस्टर अल्वारंगा पर उनकी वापसी पर मुकदमा दायर किया। लेकिन आइए इस कहानी से आगे ना बढ़ें। जब मिस्टर अल्वारंगा से सवाल किया गया कि उन्होंने समंदर में दिनों की तादाद का अंदाजा कैसे लगाया, अल्वारंगा का जवाब आसान था। वो कमरी चक्कर गिन रहा था। इसके दिनों की गिनती की बुनियाद जमीन के गिर्द चांद की गर्दिश थी। उन्होंने बताया कि कुरोडुबा चौथे कमरी चक्कर के बाद अपनी जान से हाथ धो बैठा। कुरोडुबा की मौत के बाद अल्वारंगा कुश्ती पर अकेला था। बाकी 10 माह समंदर में गुजारने के लिए इसकी कुश्ती बहरुल काहिल की मर्जी से बहती रही और वो दूर दूर तक बहती रही। अब उसे इसकी खुशकिस्मती कहिए। पैसिफिक के मरकज के करीब एक छोटी सी जगह है जिसे इबोन अटविल कहते हैं। ये मार्शल जज़ायर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये बहुत छोटे जज़ायर का एक ग्रुप है। हम इसे आसानी से कहीं का मिडिल कह सकते हैं। यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते। जरा सोचिए कि बहरुल काहिल में तैरती हुई एक छोटी कुश्ती की क्या मुश्किलात हैं, और वो भी सिर्फ समंदर, सूजन, हुआ और करंट की मदद से। इबोन इटूल के इस छोटे से जजीरे के बिल्कुल करीब पहुंचना। समंदर में 14 महीने में उसने कुछ नारियल को समंदर में 14 महीने में उसने कुछ नारियल को तैरते हुए देखा। समंदर में कुछ परिंदों के साथ ये एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत है जिसे हम मर्चेंट नेवी में पहचानते हैं। परिंदों को देखने का मतलब है कि जमीन करीब है, और मिस्टर अल्वारंगा के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कहाँ है। लेकिन इसे अब उम्मीद थी कि वो करीब ही कुछ जमीन देखेगा, और जमीन करीब ही थी। यकीनी तौर पर इसने इबोन इटूल के इस छोटे से जजीरे को कुछ ही देर में देखा। लेकिन मिस्टर अल्वारंगा के मुताबिक वो फौरी तौर पर जमीन पर जाने का ये मौका खोने से डर गया, क्योंकि इसके पास अपनी कश्ती को चलाने के लिए ओनर्स भी नहीं थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जमीन के बहुत करीब चला गया कि इसने कश्ती से छलांग लगा दी और तीर कर जजीरे पर पहुंचा। उसने जजीरे पर एक छोटा सा घर देखा। उसने इस घर के दरवाजे पर दस्तक दी।
इस घर के मकीनों के मुताबिक उन्होंने एक नंगे आदमी को देखा, लंबी दाढ़ी, लंबी मूंछें और बहुत लंबे सर के बालों वाला ये शख्स ग़िज़ाई किल्लत का शिकार नजर आया और वो हस्पानिवी में चीख रहा था। ये मिस्टर अल्वारंगा थे, इबोन इटूल पर जिंदा पाए गए और ये 30 जनवरी 2014 को हुआ। मकीनों ने हुक्काम को आगाह किया और चंद ही दिनों में ये खबर वायरल हो गई। समंदर में 14 माह बाद एक शख्स मिला। मिस्टर अल्वारंगा के मुताबिक उसने 15 कमरी चक्कर समंदर में गुजारे थे जो कि 438 दिन के थे। यकीनन ये कहानी नाकाबिल यकीन थी और उससे वाज़े तौर पर पूछ-गुछ की गई। यहां तक कि इस कहानी की तस्दीक के लिए तिब्बी माहिरीन से भी रुजू किया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है, एक शख्स का समंदर में 438 दिन तक कश्ती में जिंदा रहना तिब्बी नामुमकिनात है। इस कहानी को शुरू में कुछ शकूक व शुबहात का सामना करना पड़ा। गार्डियन और दी टाइम जैसे बड़े पब्लिकेशन हाउसेज ने न सिर्फ उनसे पूछ-गुछ की बल्कि तिब्बी माहिरीन की राय भी पूछी। कच्ची मछली के खून पर इंसान 438 दिन कैसे जिंदा रह सकता है? जेली मछली, बारिश का पानी, कछुए का खून और पेशाब, और ये शख्स अभी तक सेहतमंद कैसे था? मैं इस कहानी को एक मौजिज़ा समझूंगा। तिब्बी माहिरीन का यह भी मानना था कि उसके खाने में विटामिन मौजूद थे। कछुए के गोश्त और खून में विटामिन सी होता है और कुछ दीगर जरूरी ग़िज़ाइयत जो हम आमतौर पर सब्जियों से हासिल करते हैं। तो हाँ, इसकी कहानी काबिल एतबार थी। ये वाकई एक हैरत अंगेज कहानी थी। मेक्सिको के लोगों को यकीन नहीं आया जब उनके मुल्क में ये बात पहुंची कि उनका हम वतन समंदर मजरू में 438 दिन से जिंदा है। माजुरो मार्शल जज़ायर का दारुल हुकूमत है और इबोन अटविल छोटे जज़ायर का एक ग्रुप है। किसी को यकीन नहीं आया कि वो एक कश्ती पर मार्शल आइलैंड तक पहुंचा ताकि इसमें शामिल फासले का बखूबी अंदाजा लगाया जा सके। इसका सफर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा 10,800 किलोमीटर के करीब था, लेकिन फिर कोई नहीं जानता था कि आया उसकी कश्ती सीधी मार्शल आइलैंड की तरफ चली गई। इसलिए ये फासला थोड़ा कम या तवील हो सकता है। किसी भी सूरत में ये दुनिया के तवाफ का तकरीबन 1/3 हिस्सा है। ये एक हैरत अंगेज कहानी है कि एक शख्स ने मेक्सिको से मार्शल आइलैंड तक समंदर और मौसम की वजह से इतना बड़ा फासला तय किया, और शुक्र है कि वो मार्शल आइलैंड्स के एक जजीरे के करीब पहुंच गया था। अगर वो मार्शल आइलैंड्स से महरूम हो जाता तो अगला जमीनी रास्ता फिलिपाइन से 3-4 हजार मील मजीद दूर होगा। इसके वहां पहुंचने के तकरीबन 200 दिन बाद बहरहाल इसे तिब्बी इलाज के लिए मजूरू ले जाया गया, जिसके बाद उसे फुट टू फ्लाई सर्टिफिकेट दिया गया और वो मेक्सिको के लिए उड़ान भरी। तो इसका खानदान मुकम्मल तौर पर शशदर रह गया, क्योंकि मेक्सिको में इसके अहल खाना समेत सबको यकीन था कि कुश्ती के दोनों साथियों में से कोई भी जिंदा नहीं है। अल्वारंगा को जिंदा पाया गया। कुरोडुबा के खानदान ने मिस्टर कुरोडुबा पर इस पर मर्दाना खौरी का मुकदमा दायर किया। इस मुकदमा केस की कहानी की एक और तफसील भी है, लेकिन निचली बात यह है कि यह एक हैरत अंगेज कहानी है और मैं आज इस कहानी को तफसील से सुनाना चाहता था। अगर आप लोग कहानी जानते हैं लेकिन फिर भी उसे देख चुके हैं, शुक्रिया। अगर आप लोगों को आज की वीडियो किसी भी तरह पसंद आई है, फिर क्यों ना इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक लाइक और सब्सक्राइब करना और भी बेहतर होगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।